بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ارسلان اور شامل کریں گے آج کی کچھ اہم علاقائی خبریں۔ سب سے پہلے اکاڑا سے آپ کو بتاتے چلیں، ہمارے نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا سیف سٹی کیمروں کی سی سی ٹی وی طرز پر تنصیب۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ محمد فرقان بلال کی ہدایت پر تحصیل دیپال پور میں سیکیورٹی کے عظیم الشان منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ اکاڑا کے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سیف سٹی کی طرز پر سیکیورٹی کا نظام متعارف کروایا گیا۔ اس نظام سے جرائم پیشہ افراد کی نگرانی اور گرفتاری میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ مختلف مقامات پر کیمروں کو سی سی ٹی وی پر نصب سیکیورٹی نظام میں شامل کیا گیا۔ ضلع بھر میں 2653 کیمروں کی سی سی ٹی وی تنصیب مکمل کر لی گئی اور یہ ایک احسن اقدام ہے، اور اس احسن اقدام پر سول سوسائٹی کی جانب سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ محمد فرقان بلال کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مرید کے جی ٹی روڈ کالا شاہ کاکو کے قریب ٹریفک حادثہ۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ٹرک کی رکشہ کو ٹکر، حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق شخص کی شناخت 21 سالہ فرقان کے نام سے ہوئی، جبکہ زخمیوں میں سے ایک کی شناخت 20 سال قاسم کے نام سے ہوئی۔ ایک زخمی کی ابھی تک شناخت نہ ہو سکی، جبکہ قاسم اور فرقان دونوں دوست رکشہ میں سفر کرتے ہوئے لاہور جا رہے تھے کہ اچانک حادثے کی نظر ہو گئے۔ اس وقت ہمارے نمائندے ملک سلمان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی ملک، یہ بتائیے گا افسوسناک حادثہ کیسے پیش آیا، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، مرید کے جی ٹی روڈ کالا شاہ کھکھو کے قریب یہ ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ٹرک کی رکشے کو ٹکر، حادثے میں ایک افراد جاں بحق، 2 شدید زخمی۔ جاں بحق افراد کی شناخت 21 سالہ فرقان کے نام سے ہوئی، جبکہ زخمیوں میں سے ایک کی شناخت 20 سالہ قاسم کے نام سے ہوئی۔ ایک زخمی کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی، جبکہ قاسم اور فرقان دونوں دوست رکشے میں سفر کرتے ہوئے لاہور جا رہے تھے کہ اچانک حادثے کی نظر ہو گئے۔ ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار۔ زخمی قاسم کو لاہور میو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ جاں بحق فرقان کے نعش کو مرید کے ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جی اور ہڑپا سے آپ کو بتاتے چلیں، عمران کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق امیدوار قومی اسمبلی حلقہ 142 محترمہ عائشہ ارشد خان لودھی پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ ساہیوال کے ڈویژنل صدر منتخب ہو گئیں۔ رانا محمد خلیل نائب صدر ایم ایس ایف اور چودھری طاہر محمود رہنما پاکستان مسلم لیگ نون نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ عائشہ ارشد لودھی کو پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ ساہیوال کے ڈویژنل صدر بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز، میاں حمزہ شہباز شریف اور نزہت صادق صاحبہ کے مشکور ہیں جنہوں نے اس اہم ذمہ داری سے نوازا۔ یہ محترمہ عائشہ ارشد لودھی کی دن رات ورک کا ثمر ہے اور محترمہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں گی۔ محترمہ عائشہ ارشد لودھی ہمارے حلقہ کی فیورٹ ترین لیڈر ہیں اور آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ قومی اسمبلی حلقہ NA 142 کی ممبر منتخب ہوں گی۔ اور پشاور سے KP کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کے مطابق تاریخ میں پہلی مرتبہ گورنر ہاؤس یتیم اور خصوصی بچوں کے لیے کھول دیا گیا۔ ضلع پشاور کے تمام تعلیمی اداروں اور سینٹر سے یتیم اور معذور بچوں کی بڑی تعداد کی گورنر ہاؤس آمد۔ گورنر ہاؤس میں پہنچنے کے لیے تفریح کے ساتھ کھیل کود کا بھی بندوبست کیا گیا۔ گورنر کی طرف سے بچوں کے لیے خصوصی ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ گورنر غلام علی، میئر پشاور، CCPO پشاور اور کمشنر بچوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اور رحیم یار خان سے آپ کو بتاتے چلے، سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان چلڈرن پیراڈائز اسکول سسٹم میں سالانہ امتحانات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ چلڈرن پیراڈائز اسکول سسٹم خانپور کا نواحی علاقہ پول اڈا 121 1L میں سالانہ تقسیم انعامات کی ایک زبردست تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سالانہ امتحانات میں شاندار پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات، شیلڈز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں مہمان خصوصی مرزا محمد شفیق نے شرکت کی۔ چلڈرن پیراڈائز اسکول سسٹم کے پرنسپل حافظ محمد ناظر نے مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ پیراڈائز اسکول سسٹم پچھلے کئی سال سے پول اڈا 121 1L میں غریب لوگوں کو تعلیم و تربیت کی بہترین سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلڈرن پیراڈائز اسکول سسٹم تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سہولیات بھی میسر کر رہا ہے تاکہ طلباء اخلاقیات، برداشت، ڈسپلن اور ہار جیت کا جذبہ پیدا کر سکیں۔ پرنسپل حافظ محمد ناظر اپنے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی محنت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میرے اسٹاف کی لگن اور محنت سے آج علاقے میں چلڈرن پیراڈائز اسکول سسٹم ایک نمایاں مقام حاصل کر چکا ہے۔ مہمان خصوصی مرزا محمد شفیق نے تقریب سے خطاب
खिताब करते हुए कहा कि आज तलबा की शानदार कारकर्दगी देखकर बहुत खुशी हुई है। उन्होंने प्रिंसिपल हाफिज मोहम्मद नासिर और इदारे के स्टाफ को कामयाब प्रोग्राम मुनक्किद करने पर बहुत मुबारकबाद दी। मेहमानाने ग्रामी का मजीद कहना था कि आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए हमें चाहिए कि हम स्कूल्स में तलबा को नॉर्मल तालीम के साथ साथ फनी तालीम और तरबियत भी दें ताकि वो कोई हुनर सीख कर अपने लिए कोई अच्छा रोजगार हासिल कर सकें। लियाकतपुर से आपको बताते चले, तारक महमूद शाद की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के सब कैंपस लियाकतपुर में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तलबा और तालिबात के माबैन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले करवाए गए और जीतने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। तलबा और तालिबात के माबैन लूडो, साइकिल रेस, रस्साकुशी, बैडमिंटन समेत क्रिकेट और दीगर खेलों के मुकाबले करवाए गए। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी की लेक्चरार ने कहा कि तालीम के साथ साथ खेल जैसी सरगर्मियां तलबा और तालिबात की सेहत के लिए फायदेमंद साबित होती हैं। ऐसी एक्टिविटी के जरिए दिमाग भी फ्रेश हो जाते हैं। निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां सेहत के लिए जरूरी अमल है। खेलों में जीतने वाले तलबा और तालिबात को मेडल्स और ट्रॉफियों से भी नवाजा गया। शहदाद कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मेंबर साजी का आगाज शुरू कर दिया गया। मेंबरशिप हासिल करने के लिए लोगों ने कसीर तादाद में कोटो मोटो चौक पर पीटीआई के कैंप का रुख कर लिया। शहदाद कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हुक्म के मुताबिक पीटीआई वुमेन विंग की साबका जनरल सेक्रेटरी मैडम नाहिद खावड़ की निगरानी में कोटो मोटो चौक पर कैंप लगाकर मेंबर साजी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ये मेंबर साजी का सिलसिला 4 रोजा जारी रहेगा। जैसे ही मेंबर साजी शुरू हुई तो मर्द और खवातीन लाइनों में खड़े होकर मेंबर साजी में खूब हिस्सा लिया और लोगों में अवेयरनेस देने के लिए लाउड स्पीकर पर पीटीआई के रहनुमा मोहम्मद जान बरोही ने अपने फराइज इंजाम देते रहे। मैडम नाहिद खावड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोग अपनी मर्जी और खुशी से मेंबरशिप करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि शहदाद कोर्ट की बाशऊर अवाम इमरान से बेहद प्यार करती है और मौजूदा हुकूमत से बहुत तंग है। हासिलपुर से याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ थाना सिटी हासिलपुर राव शहजाद बाबर के तबादला पर उनके एजाज में थाना सिटी में अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी डीएसपी सर्कल हासिलपुर राना अकमल रसूल नादर थे। अलविदाई तकरीब से डीएसपी राना अकमल रसूल नादर जुल्फकार अली कायम खानी ने खिताब करते हुए कहा कि तबादला तैनाती मुलाजमत का हिस्सा है, लेकिन जो अफसर अपनी तैनाती के दौरान खिदमत खलक के जज्बा से और माशरती नासूरों के किला कमा के लिए कोशां रहता है, अवाम साइलिन के साथ हुस्न सलूक बेहतर रखता है, तो फिर ऐसे अफसर की कमी शिद्दत से महसूस होती है। राव शहजाद बाबर ने जराइम पेशा नासिर पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी, साइलिन को मुतमईन किया। यही वजह है आज लोग इनको फूलों के हारों से रुखसत कर रहे हैं। समाज दुश्मन नासिर का किला कमा हो, थाने में आने वाले साइलिन को इज्जत दी जाए। इस मौका पर एसएचओ थाना सदर जाम अब्दुल गफार, एसएचओ सिटी मोहम्मद अली, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अनीस, एसएचओ थाना कायमपुर शाह जरी और दीगर पुलिस अफसरान और मुअज्जिजीन इलाका कसीर तादाद में मौजूद थे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर मारूफ कानूनदान उमर हयात भट्टी एडवोकेट ने कहा है कि बार एसोसिएशन के इंतखाबात में उनकी तारीखी कामयाबी जात की नहीं बल्कि प्रोफेशनलिज्म, जमहूरियत और आईनो कानून की बालादस्ती की नवीद है। अब वकला को हकीकी मानों में रिलीफ देने के लिए काम किया जाएगा, तो दूसरी तरफ अवाम भी इंसाफ की बरवक्त फराहमी में अवाम को भी बड़ी मदद मिलेगी। जिला कचहरी को टाउट माफिया से पाक करने के साथ साथ करप्शन के खात्मा के लिए भी काम किया जाएगा, जबकि जिला में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी को भी बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वकला बरादरी से किए गए वादों की तकमील मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जिसे फौरी तौर पर अमली जामा पहनाया जाएगा। वकला की फलाह बहबूद और बार कौंसिल को फाल बनाने की खातर तमाम नौ मुंतखब ओहदेदारान और सीनियर वकला को साथ लेकर चलूंगा। उन्होंने कहा कि शेखुपुरा की वकला बरादरी जिसने भरपूर अंदाज में मुझ पर और मेरे ग्रुप पर एतमाद का इन्हिसार किया, मैं इंशाल्लाह इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा और आईन कानून की बालादस्ती कायम करने और वकला के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमतन गोश रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि अपने नौ मुंतखब ओहदेदारों के साथ मिलकर शेखुपुरा में वकला कॉलोनी के क़याम के लिए जिद्दोजहद की जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा और अंजुमन ताजरान लंडा मार्केट खादम हुसैन रोड के सदर मियां मोहम्मद लतीफ ने कहा है कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, नवाज लीग की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया गया, मगर प्री प्लान धांधली के जरिए लाए जाने वालों से मुल्क न चल सका, उल्टा मुल्क मसाइल की दलदल में फंस गया और आवाम को मुश्किलात की दलदल में धकेला गया। इत्तेहादी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो हालात निहायत अबतर थे, कोई शोबा फाल नहीं था और मईशत की कमर टूट चुकी थी। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत पर इल्जाम तराशी करने वाले अपने गिरोबानों में झांके, उनके 4 साल दौरे इक़्तिदार में मुल्क बहरानों का शिकार हुआ। मियां शहबाज शरीफ की अनथक जिद्दोजहद का समर है, चंद माह में मुल्क की मईशत को बहाल करने समेत दरपेश मुल्की मसाइल का खात्मा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सियासी मकासद के हसूल की खातिर मुल्क के अमन को दाव पर लगाने वाले मुल्क कौम के खैर ख्वाह नहीं, इक़्तिदार के भूखे हैं। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत की जिद्दोजहद के बायस मुल्की तरक्की और अवामी खुशहाली से मुल्क हमकिनार हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहसील सदर चौधरी
अजहर महमूद विर्क ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कराची समेत सिंध भर की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। कराची में भी मेयर पीपी का ही होगा। तहरीक इंसाफ का बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद ववेला बेमानी है। ये अपनी नाकामी की खफ्त मिटाने की खातिर इंतखाबात में धांधली का अपना पुराना राग अलाप कर रहे हैं। जहाँ से कामयाब हों इन नताइज को दुरुस्त और जहाँ नाकाम हो वहाँ पे ये अपनी नाकामी को हमेशा धांधली में ताबीर करते आए हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में भी कराची पीपल्स पार्टी सूबाई और कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तें भारी अक्सरियत से जीतेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जमहूरी जद्दोजहद रंग ला रही है। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात में एक बार फिर खुद को विफाक की अलामत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि कराची के मेयर के लिए पीटीआई के अलावा सबसे बात हो सकती है। पार्टी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह है क्योंकि जमहूरी इक़्तिदार का जनाजा निकालने वालों से जमहूरी अमल के फ़रोग़ की तवक्को नहीं की जा सकती। पार्टी कारकुनान भी इस मौक़िफ़ की तायद करते हैं और पार्टी क़यादत के हर फैसले के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा इल्हाज मोहम्मद असलम बलोच ने कहा है कि मुल्क पर बददियानत टोला मुसल्लत है जो कि मुसलसल गरीब अवाम का खून चूस रहा है। 8 माह में इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्की मईशत का सत्यानाश कर दिया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान का अवाम तक पैगाम पहुँचाने में दिन रात मसरूफ़ अमल है। मुल्क की तारीख में सिर्फ पीटीआई की हुकूमत ने डिलीवर किया और हालात बेहतरीन होने के बावजूद इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म मुल्क को संभाला दिया और तरक्की की राह पर गामजन किया। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इमरान खान मुल्क को बहरानों और मसाइल के भंवर से निकालेंगे। वो वक्त दूर नहीं जब इलेक्शन होंगे और तहरीक इंसाफ अवामी ताकत से 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि करप्ट टोला इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करके अवाम को फैसले का हक भी नहीं दे रहा। शफाफ इंतखाबात के जरिए आने वाली मजबूत हुकूमत ही मुल्क को मौजूदा हालात से निकाल सकती है। कौम इमरान खान के शाना बशाना है। तहरीक इंसाफ विफाक और चारों सूबों में हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली जीत गई और हकीकी वोटर्स हार गए। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने में बिल्कुल नाकाम रहा। सिंध में पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश की। ये लोग जितने मर्जी जतन कर लें पीटीआई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैजुल रसूल गुज्जर ने कहा है कि पै दर पै नाकामियों के बाद इम्पोर्टेड टोला मुल्क से खिलवाड़ करने पर उतर आया। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी ने हुक्मरानों की बुखलाहट वाजे कर दी। पीडीएम टोला मुआशी और सियासी दहशतगर्दों का इम्तिजाज है लेकिन इनका आईनो कानून के दायरे में रहते हुए सामना और मुहासबा किया जाएगा। पीटीआई सियासी यतीमों को जल्द बड़ा सरप्राइज देगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून में तकसीम का अमल शुरू हो चुका है। जल्द मुख्तलिफ ग्रुप से सामने आएंगे। मरियम नवाज अपने चचा के मद्दे मुकाबल हैं। उनकी जमात में कुछ लोग मरियम नवाज को पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड वजीर आजम के एतमाद के वोट की नौबत आने से पहले ही हुकूमत भोखलाहट का शिकार हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने ज़िमनी इंतखाब न लड़ने का पेशगी ऐलान करके पीडीएम की शिकस्त तस्लीम कर ली है। पीडीएम टोला भाग भाग कर हल्कान होने की बजाय इंतखाबात का ऐलान कर दे तो रही सही साख बच सकती है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में पीटीआई की जीत वाज़े है और इमरान खान ही अगले वजीर आजम होंगे। कौम इन्हें मुल्क की क़यादत सौंपने का पुख्ता इरादा कर चुकी है जिसे मुतज़लज़ल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर लॉर्ड्स फॉर्म लीगल एडवाइजर अंजुमन ताजरान शेखुपुरा अहमद हसन पाशा एडवोकेट ने कहा है कि वफाक में मुत्तहिदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान की अदम बर्दाश्त से रियासत, सियासत और जमहूरियत को शदीद खतरा है। इमरान खान को लगा कि इनके पार्लियामेंट में ना आने से रियासती निज़ाम जाम हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा वो मुंतखब ऐवान में वापसी का इंदिया जाहिर कर चुके हैं मगर आने या ना आने से इत्तेहादी हुकूमत की आईनी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पंजाब की बैसाखियां छिन जाने के बाद इमरान खान के ख्वाबो ख्याल का महल जमीन बोस होना तय था। उन्होंने कहा कि नवाज लीग के कायदीन कौमी सियासत में सरगर्म और नाकाबिल शिकस्त हैं। अवाम सियासत के नाम पर रियासत को ब्लैकमेल करने वाले पीटीआई रहनुमाओं को वोट की ताकत से मुस्तरद कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुआशी महाज पर वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की फतूहात ने हमारी रियासत को मुआशी तौर पर दिवालिया होने से बचा लिया। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकने की साजिशें करने वाले आइंदा भी मुंह की खाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को नवाज लीग की क़यादत तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करेगी। शेखुपुरा से ही आपको बताते चले सूबा भर की तरह शेखुपुरा में भी 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी है। जिला भर में 3027 पोलियो टीमें घर घर जाकर 7 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे और विटामिन ए पिलाने में मसरूफ। पोलियो वैक्सीनेशन का टारगेट बर वक्त मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पोलियो कैंप भी लगाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारक अली बसरा ने महकमा हेल्थ की टीमों के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बच्चों की पोलियो रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा ने मुख्तलिफ आबादियों में जाकर घर घर पोलियो मुहिम के कतरे पिलाने की मुहिम और अमले की कारकर्दगी को चेक किया। तारक अली बसरा का इस मौका पर बातचीत करते हुए कहना था कि पोलियो वैक्सीनेशन का टारगेट बर वक्त हासिल करने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर पोलियो टीमों की इंस्पेक्शन कर रहा हूँ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी
ڈاکٹر سہیل طارق بھی مکمل طور پر متحرک ہیں اور فعال انداز میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ محکمہ صحت کا عملہ اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے جاں فشانی کے ساتھ مصروف عمل ہے تاکہ کوئی بھی بچہ پولیو کے قطرے پینے سے محروم نہ رہ جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے شدید دھند اور سخت سردی میں بھی ذمہ داری کے ساتھ فرائض سر انجام دینے پر پولیو ورکرز کی محنت کو سراہا اور اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھانے پر شاباش دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔